السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گجرات کے چودھریوں نے عمران خان کی کھٹیا کھڑی کر دی ہے اور کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی ہیں۔ کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ الیکشن 2023 کے بجائے 2024 میں ہوں گے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری مونس لائی، ایک طرف نواز شریف کی آمد ہے، رانا ثناء اللہ بھی بری ہو گئے ہیں۔ سارا کھیل پلٹ گیا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر۔ اس وقت کیا چل رہا ہے اور پاکستان کے سیاسی کھلاڑیوں کی اس وقت پوزیشن کیا ہے، اس پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ اس وقت اس میں بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں۔ سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ باقی تمام لوگ جو ہیں وقت کی تھپیڑوں کی زد میں رہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو اس میں بہت دلچسپ صورتحال اور بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اتنی تیزی سے کہ تمام جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ چودھری جو ہیں، گجرات کے چودھری برادران، انہوں نے تو اس وقت عمران خان کی کہتے ہیں نا کہ کھٹیا کھڑی کر دی ہے۔ وہ کیسے کھڑی کر دی ہے آپ کو یاد ہوگا، ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے جب عمران خان صاحب کے تحریک عدم اعتماد والا معاملہ چل رہا تھا اور چودھری پرویز لائی نے اچانک عمران خان کی حمایت کر کے اپنے بھائی کو چودھری شجاعت کو چھوڑ کر پنجاب کی وزارت اعلیٰ حاصل کی، جو 3.5 پونے 4 سال سے اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال عمران خان کو چودھریوں کو وزارت اعلیٰ دینی پڑی۔ وہی مونس لائی جسے عمران خان صاحب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہی ان کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا، اور اس وقت بھی مونس لائی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو بڑی تسلیاں دلاسے دے رہے ہیں۔ لیکن جناب عمران خان صاحب کا جتنا تھا نا کہ معاملہ کہ میں بہت مقبول ہوں اور میرے سامنے کوئی نہیں ہل سکتا، وہ سارا کچھ اب ان کا جو ہے وہ بت ریت کا بت ثابت ہو رہا ہے اور وہ دھڑام سے نیچے گر گیا ہے۔ چودھری پرویز لائی، اگر ہم بظاہر سیاسی منظرنامے پہ بیانات دیکھیں چودھری پرویز لائی کے یا چودھری مونس لائی کے، تو وہ یہی نظر آتے ہیں کہ جی خان صاحب کی امانت ہے ہمارے پاس پنجاب کی وزارت اعلیٰ، جب خان صاحب کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ لیکن ناظرین اصل میں ایسا نہیں ہے۔ جو منظرنامے پہ دکھائی دے رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، اور جو منظرنامے کے پیچھے ہے وہ کچھ اور ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب یہ جانتے ہیں کہ ان کا وزارت اعلیٰ جو ہے یہ ان کو اس کے بعد نہیں ملنی، کیونکہ اگر تحریک انصاف الیکشن ہار جاتی ہے اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں، اور تو پھر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی نہیں بنتے، اور اگر تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو وہ کسی عثمان بزدار کو بنا دیں گے، کسی اور کو بنا دیں گے۔ وہ پرویز لائی کو کیوں بنا دیں گے؟ کیونکہ پرویز لائی تو مسلم لیگ جو تحریک انصاف ہے اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو چودھری پرویز لائی یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے چلنا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جب سے وزارت اعلیٰ چودھری پرویز لائی کے حوالے کیا وہ مکمل طور پر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ وہ نہ تو اپنے اوپر حملے کی FIR اپنی مرضی کے مطابق کٹوانے کے اہل ہیں، اور اسی پرویز لائی کے دور میں ابھی 2-3 روز قبل بھی شہباز گل کے خلاف بھی ایک اور FIR کٹ گئی۔ اب پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کے علاوہ تمام تر وزیر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جو مونس لائی ہیں وہ مسلسل عمران خان صاحب کو تسلی دلاسا دیے جا رہے ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم تعلق نبھانے والے لوگ ہیں، عمران خان صاحب سے ہم نے تعلق بنایا ہے، اور پرویز لائی بھی ایسی باتیں کریں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آج سے کچھ دن قبل ایک خبر بریک کی تھی، اس وقت تک اس خبر کا کوئی وجود نہیں تھا سیاسی منظرنامے پہ۔ وہ خبر یہ تھی کہ چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، اور اب یہ آئندہ بھی مل کر ہی چلیں گے، اور یہ فیملی کے لوگوں نے بیٹھ کے صلح کرائی۔ اب یہ چیز آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اب سچویشن یہ بن چکی ہے کہ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں چودھری پرویز لائی کو اسمبلی توڑنے کا، لیکن چودھری پرویز لائی نہ صرف یہ کہ اسمبلیاں توڑ نہیں رہے بلکہ عمران خان صاحب کو واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ اگر ہماری حکومت نہ رہی، اگر آپ نے یہ اسمبلی توڑوا دی تو آپ کو نہ صرف یہ کہ گرفتاری کا خطرہ ہے، وفاقی حکومت کے طرف سے بہت سارے مقدمات ہیں آپ کے خلاف، دوسری بات یہ کہ پنجاب کے وسائل آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تیسری بات کہ آپ کی جو سیکیورٹی اور پروٹوکول ملا ہوا ہے پنجاب کی طرف سے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب یہ کرنے کی باتیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب ان کے کہنے پر کسی قسم کی اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جناب ایک جو ایکسکلوزیو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ان ہینڈ انہوں نے ایک آفر کی ہے چودھری پرویز لائی نے انڈر دی ٹیبل عمران خان کو، اور ان سے یہ کہا ہے مبینہ طور پہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں الیکشن کے بعد
चौधरी मोनस अलई को वज़ीर आला पंजाब बनाने की गारंटी देते हैं तो फिर हम असम्बली तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये बड़ी एक शातराना चाल है। इमरान खान साहब ये सोच सकते हैं कि चलें हम एक कमिटमेंट इनके साथ कर देते हैं, मोनस अलई को वज़ीर आला बनाते हैं। मोनस अलई वैसे भी आजकल बड़ा क्लोज़ है इमरान खान साहब के भी, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के भी, उनके जो है सियासी डायरेक्शंस वो उनसे लेते रहते हैं। लेकिन ये अगर हम सोचें कि इसके दो पहलू हैं, एक तो ये है कि इमरान खान साहब अगर कोई ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं तो क्या इमरान खान साहब कमिटमेंट पूरी करेंगे? अगर मेरे जैसा और आपके जैसा आम आदमी इस चीज़ को समझता है कि इमरान खान ने ये कमिटमेंट इलेक्शन जीतने के बाद कतई पूरी नहीं करनी, तो चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई घास तो नहीं खाई हुई। अब ये चौधरी परवेज़ इलाही ने ये ऑफ़र क्यों किया है? इसलिए कि चौधरी परवेज़ इलाही को पता है कि ये ऑफ़र एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसी बहाने अब वो ये कोशिश करेंगे कि अपने इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। ये तो वो कह चुके हैं कि 4 महीने तक तो कोई इम्कान नहीं है, उसके बाद दिन कितने रह गए। लेकिन इसी के साथ ही कुछ ऐसी आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं, कुछ ऐसी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुल्क की माशी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुमकिन है कि जो मुकर्रर वक्त है 2023 का, उसमें भी इलेक्शन ना हो सके और मामलात को आगे ले जाना पड़े। ये खबर इक़्तिदार से महरूम इमरान खान, जो वफाक किया तक इक़्तिदार से महरूम हैं और पंजाब में अमलन वैसे महरूम हैं, बज़ाहिर तो वो हैं, तो उनके लिए बड़ी रूह फरसा है। और इस सारी सूरत हाल में ये जो तजवीज़ है, इसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा सपोर्ट होगी तो वो PDM की हुकूमत के बजाय ख़ुद इमरान खान के इत्तेहादी परवेज़ इलाही की तरफ से होगी, क्योंकि परवेज़ इलाही को पता है कि ये उनकी आखिरी वज़ारत आला का दौर है, जो मौजूदा पाकिस्तान का सियासी दौर है उसके अंदर। तो उनको चाहे उनको 2 महीने मिलते हैं, 1 महीना मिलता है, 6 महीने मिलते हैं या 1.5 साल मिलता है, तो यही वज़ारत आला है जिसके बल पर वो कायम रह सकते हैं। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही शुजात के आपस में जो तल्लुकात ठीक हो गए हैं, उसके बाद चौधरी शुजात को इख्तियार पहले से दे रखा है PDM ने, नवाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने, कि वो जिसे चाहेंगे वो पंजाब का वज़ीर आला होगा। और आपको याद होगा नाज़रीन, जब ये सारा मामला चल रहा था पहले वज़ारत आला का, तो उस वक्त भी चौधरी शुजात हुसैन के ये कहते हैं कि मेरा वज़ीर आला पंजाब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही है, लेकिन वो इमरान खान की तरफ से ना हो। तो इसका मतलब यह है कि अब जो मामलात हैं वो इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब जो अब बड़े डट के कह रहे हैं इमरान खान को कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, और उनको किसी चीज़ का डर भी नहीं है, तो उसकी वजह यही है कि उनको इस चीज़ का पता है कि उनके भाई चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो PDM को लेकर उनके पीछे खड़े हो जाएंगे और वज़ारत आला उनकी बच जाएगी और इमरान खान की उल्टा काबीना से भी उनकी जान छूट जाएगी। यही सूरत हाल है जिसके अंदर हमने देखा कि चौधरी मोनस अलई, जो कि चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, चौधरी शुजात हुसैन सब चूँकि सेहत अब उनकी उतनी अच्छी नहीं है, तो आज उन्होंने अब से कुछ देर कबल जाके लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। अब नवाज शरीफ साहब से चौधरी मोनस अलई की मुलाकात होना, चौधरी सालेक हुसैन की मुलाकात होना, जो यहाँ से जाकर स्पेशली वहाँ पर उनसे मिले हैं, ये कोई आम बात नहीं है। और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, लेकिन ये इस सारे मंजरनामे को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल साफ पता चलता है कि वो चौधरी शुजात की तरफ से नवाज शरीफ साहब को के लिए मैसेज लेकर गए हैं और नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लेने के लिए गए थे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं चौधरी शुजात साहब, ताकि नवाज शरीफ साहब के इल्म में हो और उनकी हमायत उनको हासिल रहे। तो इस वक्त जनाब चौधरी ने मिलकर ना, जो चौधरी परवेज़ इलाही ने और चौधरी शुजात हुसैन ने, बज़ाहिर ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, लेकिन दरअसल ये एक हैं। और इसी तरह चौधरी मोनस अलई और चौधरी सालेक हुसैन ये बज़ाहिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, शायद अंदर से भी इतने एक दूसरे से हक़ में ना हों, लेकिन दोनों अपने अपने वालिद के कहने सुनने में हैं। तो इन सब में चौधरियों ने मिलकर ना इमरान खान की खटिया ज़रूर खड़ी कर दी है। आगे बढ़ते हैं जनाब। नवाज शरीफ की आमद है, और नवाज शरीफ की आमद का पहले भी कई दफ़ा ऐलान हुआ, लेकिन इंसान कहता था कि यार पता नहीं कब आएंगे। अब 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो साल 8 साल पहले आ चुके हैं, फिर जो है वो आज रात तकरीबन 1 बजे वो पहुंच जाएंगे। आपसे कुछ देर के बाद शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सलमान शहबाज, जो कि 4 साल से बैरून मुल्क मुकीम थे, वो भी आ रहे हैं। और सबसे संजीदा बात जिसे हमें लगती है कि वाकई नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो यूनियन कौंसिल लेवल पर है उस तक मैसेजेस जा चुके हैं, उस यूनियन काउंसिल की लेवल तक, जो कि एक बेसिक यूनिट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, और वहाँ पर भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल की बाकायदा तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। और साथ ही साथ इलेक्शन की तैयारियाँ भी की जा रही हैं कि अगर किसी वक्त भी असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो उस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार हो। हमें पिछले तमाम ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार दिखाई नहीं दी, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून आपको इलेक्शन के लिए तैयार दिखाई देगी। और आप आने वाले हर दिन आप देखेंगे कि उनका मोमेंटम इस सारे सूरत हाल के अंदर आगे बढ़ेगा।
इसी सारी सिनेरियो में एक जो और बहुत बड़ा धचका है इमरान खान साहब के लिए, वो धचका है राना सनाउल्लाह का बरी हो जाना। इंसदाद मनशियात की अदालत ने आज उनको 15 किलो हेरोइन के मुकदमे से बरी कर दिया, जो कि इमरान खान साहब के दौर में उनके खिलाफ कायम किया गया था। और कहा यह भी जाता है कि मुबैना तौर पर पहले ये मुकदमा बनाने के लिए IG, उस वक्त के IG इस्लामाबाद को कहा गया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद ये काम ANF से मुबैना तौर पर लिया गया। और शरिया अफरीदी जान अल्लाह को दनी है, हमारे पास तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं। ना सिर्फ ये कि कोई वीडियो और कोई रिकॉर्डिंग किसी अदालत में प्रोड्यूस नहीं की गई, बल्कि जो इस्तगासा के गवाहान हैं उन्होंने अदालत में जाके ये कह दिया कि हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमें इस मुकदमे में गवाह रख लिया गया, हम तो साथ थे, ना हमने इन्होंने निकलती देखी है, ना हमने पकड़ी है, ना हमने बरामद की है। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आज इस मुकदमे में बरी हो गए हैं, जो कि इमरान खान साहब के लिए यकीनन किसी धचके से कम नहीं होगा। और राना साहब जो हैं वो उसे कहते हैं मूँछों को बल दे के ज़ेरे मूँछ मुस्कुराते हुए ललकार रहे हैं कि तोड़ के दिखाएं असेंबलियाँ। उनको पता है कि नहीं तोड़ सकते इमरान खान साहब। इमरान खान साहब परवेज़ इलाही से असेंबलियाँ तो कैसे तोड़वाएंगे? वो तो जो KPK की हुकूमत है, जो इमरान खान साहब कैसे कहते हैं कि हाथ झाड़ने किससे भी पहले टूट सकती थी आज से कुछ दिन कबल, अब तो वो भी बैरिस्टर सैफ जैसा बंदा जो PTI में इतने पुराने भी नहीं है और तर्जमान है KP हुकूमत के, वो पहले भी 2-3 दफ़ा बयान दे चुके हैं और आज उन्होंने फिर कहा कि जी जब तक पंजाब असेंबली नहीं टूटती उस वक्त तक KP की असेंबली नहीं तोड़ी जाएगी। तो इमरान खान साहब इस वक्त पंजाब और KP के अंदर इक़्तिदार में होते हुए भी बहुत ज़्यादा बेबस हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल उनकी दिखाई दे रही है जैसे बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की थी, कि वो बज़ाहिर वो बादशाह था लेकिन असल में जो है वो सरकार कोई और चला रहा था। तो यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन ये है कि पंजाब में भी और KP में भी इस वक्त सरकार कोई और चला रहा है और इमरान खान साहब बेबसी से तमाशा देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि आज़म स्वाति जो पहले गिरफ़्तार होता था इनके इक़्तिदार से निकलने के बाद भी, लेकिन 2 दिन के रिमांड के बाद उसकी बेल हो जाती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उसका 2 दिन के बाद 4 दिन का और रिमांड होता है, फिर उसको बलोचिस्तान पुलिस ले जाती है। बलोचिस्तान पुलिस में रिमांड ख़त्म करके वो बेल होती है उसकी, तो फिर वहाँ से उसको सिंध पुलिस ले जाती है। और बाद में शहबाज गिल के ख़िलाफ़ भी सिंध में मुकदमे दर्ज होते हैं, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ पंजाब के अंदर भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब को ये तमाम मैसेजेस की समझ आ रही है कि वो जिन पत्तों पर तकिया था वो अब हवा देने लगे हैं। अब तो चाचू भी रिटायर होकर आज बाज़ाब्ता तौर पर पता चल गया कि घर चले गए हैं। तो इमरान खान साहब जो है इस वक्त उनकी पोजीशन को अगर हम देखें तो इस वक्त तो एक बेबसी के आलम में ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं, बयान शान देते रहते हैं। फवाद चौधरी भी कहते हैं कि जी परवेज़ इलाही जो है वो फैसला करें, उन्होंने आंदा इलेक्शन हमारे साथ लड़ना ये नहीं लड़ना। सीधी सी बात है, परवेज़ इलाही अब उनके काबू में नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही ने उनसे हुकूमत भी ले ली है और हुकूमत भी उनकी अपनी है, इमरान खान की नहीं है इस वक्त कम से कम पंजाब के अंदर। और यही सिचुएशन अब KP भी उनके हाथ से निकलता जा रहा है। पार्टी के अंदर के लोग बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हर दिन आने वाला बहुत भारी हुआ इलेक्शन कमीशन में भी तोशाखाना वाले केसेस, नहली के मामलात, उनकी बेटी टेरियान वाले केसेस, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी बहुत सारे केसेस आने हैं, अभी उनका आना बाकी है जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऊपर से ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं। बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी की ऑडियो लीक ने भी इमरान खान को बहुत नुकसान पहुँचाया। तो इस वक्त इमरान खान साहब की सिचुएशन ये है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अंदर कि आज से कुछ दिन कबल तक जो शख्स इतना पावरफुल था, वज़ीर आज़म था, तमाम चीज़ें उसके साथ थी, फिर वो इक़्तिदार से हटने के बावजूद भी बहुत ताकतवर था और मकबूलियत की इंतहा पर था। लेकिन अब हर गुज़रते हुए दिन के साथ पब्लिक में तो क्या अपनी पार्टी भी उनके हाथ से निकलती जा रही है और वो ज़मान पार्क के अंदर बैंकर में बैठे हुए बेबसी से आने वाले वक्त का इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जो दिसंबर का महीना है ये इमरान खान साहब के लिए भारी बल्कि बहुत ही भारी गुजरने वाला है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।